Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about the natural selection. The concept of natural selection was given by Charles Darwin. According to Darwin, evolution occurred by the way of natural selection. Suppose this is one population and the population of individuals always have difference in their genotypic and phenotypic traits. So some traits they increase the survivalship, or we can say survivalship rate of individual, the reproductive potential of individual, which is the tendency of individual to produce offspring, is called as the reproductive potential, and they increase the fitness of individuals. So natural selection favor the individuals which are having high reproductive potential, which are having high survivalship rate and higher fitness. So this is how evolution occurred. Let's take examples of evolution occurred by the way of natural selection. First of all is industrial melanism in the Biston Betullaria, which is called the peppered moth. There are different species of peppered moth present in England. So before industrial revolution, there are two type of species of this peppered moth. One are light in colored and second are dark in colored. So before industrial revolution, the tree trunks they are lighter in color, and these light colored moths they sit on these tree trunks, and because of this camouflage effect, because tree trunk is lighter and the color of moth is also lighter, so because of this camouflage effect the predators do not recognize them, so that's why their survivalship rate will increase as compared to the dark colored moths. As they sit on this light tree trunks, they are visible to predators, and predators they attack them and their survivalship fitness will decrease. But the industrial revolution changed this concept. After the industrial revolution, what happened? The tree trunks they become dark in color due to the industrial smoke. When the light colored moths sit here, they are more visible to predators, so that's why predator attack them. So that's why their survival fitness decrease, but the dark colored moths they are not visible to predators, so their survival ship fitness increase. So this is how the number of dark colored moths, because they are not visible to predators due to the darkness of this trunk, their survivalship rate will increase. This is how their reproductive potential increase. The reproductive potential means the number of offsprings produced by an individual. It increase, so their number increase. So this is the example of evolution occurred by the way of natural selection. Natural selection always favor the individuals which are having high reproductive potential, which are having high survivalship rate and higher fitness. So that's why the dark colored moths are selected over light colored moths. So this is how evolution of this moth occurred. Second example is the drug resistance in HIV virus against one medicine which is called the lamivudine. Now this medicine which is lamivudine salt, it is analogous to cysteine. So cysteine is analog of this drug. So what happen when virus enter into our cell, ये जो है ये अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और अपना आरएनए जो है इसको सेल में इंजेक्ट करता है. तो यहाँ पे जो वायरस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मींस इसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता इस ड्रग में और सिस्टीन में. तो इसको लगता है कि जो ड्रग है वो सिस्टीन है, तो ये सिस्टीन की जगह पे ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देगा. इससे क्या होगा कि चेन इलोंगेशन रुक जाएगी. अगर चेन इलोंगेशन रुक जाएगी तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई प्रोटीन नहीं बनेंगे और वायरस की कॉपीज नहीं बनेगी. तो इसी तरीके से जो यहाँ पे वायरस है, जो HIV वायरस है, इसको डिजाइन किया गया था इस ड्रग को कि ये जो HIV वायरस है इसकी रिप्रोडक्शन को रोके. लेकिन ऑलवेज जो पॉपुलेशन होती है इसमें डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें वेरिएशन होती है. तो पॉपुलेशन में कुछ ऐसे वायरसेस थे जिनके पास की ऐसा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था जो HIV वायरस है, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सकता था बिटवीन दिस सिस्टीन एंड दिस ड्रग. तो इवन ये ड्रग पेशेंट में प्रेजेंट भी हो फिर भी उसको पता है कि ये इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना, सिस्टीन को ही करना है, तो वायरस की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड द ड्रग रेजिस्टेंस इन
HIV virus, which is the example of natural selection. So this is how the HIV virus evolved from this to this. Now natural selection favor the virus which discriminate between the cysteine and drug. So this is how natural selection occurred in the virus. Now there are three types of natural selection, or we can say the modes of natural selection. First is stabilizing selection. That means the natural selection always favor the intermediate state of continuous variation and extreme from both ends of frequency distribution are eliminated. इसका मतलब है कि सपोज पहले इस तरीके से पॉपुलेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन जो इन्वायरमेंट है ये इस हिसाब से चेंज हुआ कि जो इंटरमीडिएट ट्रेड्स वाले इंडिविजुअल हैं इनको नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर किया, और जो एक्सट्रीम वाले हैं ये भी एक्सक्लूड आउट हो गए, और जो इस एक्सट्रीम वाले हैं ये भी एक्सक्लूड आउट हो गए. अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो ह्यूमन वेट एंड हाइट है, जो ह्यूमन वेट एंड हाइट है ये एवरेज होता है. अगर तो एवरेज होगा तो ये इंडिविजुअल जो है ये हेल्दी होगा. अगर जो वेट है ये कम होगा तो इंडिविजुअल इज मच मोर ससेप्टेबल टू वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस. अगर वेट ज्यादा होगा तो इसमें डिफरेंट जो है डिजीज डेवलप होंगी. तो नेचुरल सिलेक्शन किसको फेवर करती है? इंटरमीडिएट वेट को. उसके बाद जो ह्यूमन बेबीज हैं या जो इन्फेंट्स हैं इनका जो बर्थ वेट होता है इट इज 2.5 टू 3.5, ये एवरेज वेट है. अगर इससे कम होता है वेट बेबी का तो इसमें बहुत सारी इन्फेक्शन डेवलप होती हैं. अगर वेट ज्यादा होगा तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी. सो दैट्स वाई जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें उसने एक इंटरमीडिएट कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है, और उसमें वो इंडिविजुअल जो इंटरमीडिएट में आते हैं उनकी जो सर्वाइवलशिप रेट है, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है और जो उनकी फिटनेस है ये सब कुछ ज्यादा होता है. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये स्टेबलाइज्ड है. सो दिस इज कॉल्ड द स्टेबलाइज्ड सिलेक्शन. Second is directional selection. It is natural selection favor only the one extreme of continuous variation. तो यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है ये इस तरीके से होती है कि ये एक डायरेक्शन में, एक एक्सट्रीम में जो ट्रेड्स हैं इनको ही फेवर करती है. जो इस साइड वाले फिनोटिपिक ट्रेड्स हैं या इंटरमीडिएट वाले हैं ये सूटेबल नहीं है इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए. सो दैट्स वाई ये एक्सक्लूड हो जाएंगे और नेचुरल सिलेक्शन इन वाले को, एक एक्सट्रीम वालों को फेवर करेगी. जैसे अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में कि दो तरीके के जो हैं ये जो दोनों पेपर्ड मॉथ्स थे, ये लाइट कलर हैं, ये डार्क कलर हैं. सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी तो ट्री ट्रंक जो है ये लाइट था, तो जब मॉथ्स इस पे बैठते थे तो ड्यू टू कैमोफ्लाज इफेक्ट जो प्रीडेटर्स है इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ कि जो ट्री ट्रंक है ये डार्क हो गई ट्रंक, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो डार्क वाले हैं ये अनरिकग्नाइजेबल हैं प्रीडेटर के लिए, तो इनका नंबर बढ़ेगा. नेचुरल सिलेक्शन इनको फेवर करेगी. डायरेक्शनल सिलेक्शन मींस एक ही डायरेक्शन में जो है सिलेक्शन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है. जो इधर वाले हैं ये सारे एक्सक्लूड आउट हो जाएंगे और जो एक डायरेक्शन वाले हैं इनको ही नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगी. अब इसमें दूसरी एग्जांपल है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ. जो जिराफ थे इनकी नेक साइज जो है ये लॉन्ग थी और कुछ की शॉर्ट थी. तो जब फूड स्कार्सिटी का टाइम आया तो क्या हुआ कि जो लार्ज ट्रीज थे इनके ऊपर जो हायर ब्रांचेस हैं इनमें ही लीव्स हैं. तो जो तो जिराफ जिनकी नेक लार्ज है वो इस फूड को खा सकते थे, और जिनकी नेक शॉर्ट है वो इस फूड को असेस नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पे इनका सर्वाइवलशिप रेट डिक्रीज हो गया और इनका इंक्रीज हो गया. तो नेचुरल सिलेक्शन ने इनको, जो लार्ज नेक वाले जिराफ हैं इनको फेवर किया. सो दिस इज हाउ जो मॉडर्न जिराफ है इनमें सभी में लॉन्ग नेक्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये भी जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जांपल है. उसके बाद जो थर्ड है इट इज कॉल्ड द डिसरप्टिव सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन फेवर बोथ द एक्सट्रीम्स. दोनों एक्सट्रीम्स को नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है और जो इंटरमीडिएट वाले हैं ये एक्सक्लूड हो जाते हैं, इनको फेवर नहीं करता. सो नेचुरल सिलेक्शन फेवर द बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस variation. It is also called the diversifying selection that describe the population genetic changes that favor the extreme values of trait over the intermediate values of trait variation, increase the population split. So example in this is Darwin finches. जो डार्विन फिंचेस हैं ये गैलेपैगो आइलैंड पे इनका एवोल्यूशन हुआ. गैलेपैगो आर्कीपेलागो, गैलेपैगो जो है इस आर्कीपेलागो का नेम है. आर्कीपेलागो का मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है इसके साउथ वाली साइड इस तरीके से पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के पास गैलेपैगो आर्कीपेलागो प्रेजेंट है.
अब क्या हुआ कि कुछ जो फिंचेस हैं जिनको डार्विन फिंचेस बोला जाता है, ये एक आइलैंड पे मूव करी, गैलीपैगो आइलैंड में। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट आइलैंड्स में स्प्रेड हो गई। नाउ अब ये जो आइलैंड है, सपोज ये वाला एक आइलैंड है, तो इस आइलैंड पे हैबिटेट डिफरेंट है। यहाँ पे जो इतना एरिया है इसमें लार्ज सीड्स प्रेजेंट है, जो इतना एरिया है इसमें स्मॉल सीड्स प्रेजेंट है, जो इतना एरिया है इसमें इंटरमीडिएट सीड्स प्रेजेंट है, और जो ये वाला एरिया है इसमें बहुत ज्यादा लार्ज सीड्स प्रेजेंट है। तो अब किस तरीके से हुआ कि जो फिंचेस हैं जो इस आइलैंड पे प्रेजेंट है, ये जो फिंचेस हैं इसमें डिफरेंट तरीके की फिंचेस हैं। जो पॉपुलेशन है हमने अभी देखा कि उसमें ऑलवेज वेरिएशन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कुछ जो फिंचेस हैं उनकी जो बीक है ये लार्ज है, कुछ की बीक स्मॉल है, और कुछ की जो बीक है ये इंटरमीडिएट है। तो ये हर एक जो बीक वाला इंडिविजुअल है ये डिफरेंट सीड्स को ईट कर सकता है, डिफरेंट सीड्स पे फीड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज ये वाला जो एरिया है इसमें तीनों इंडिविजुअल्स आए, तो यहाँ पे लार्ज सीड्स प्रेजेंट हैं, तो लार्ज बीक्स वाले इंडिविजुअल्स यहाँ पे इनका जो सर्वाइवल फिटनेस है ये इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दीज टू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो है ये लार्ज जो बीक वाले हैं इनका नंबर बढ़ जाएगा। अब दूसरी जगह पे क्या है, बिल्कुल स्मॉलर सीड्स हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉल सीड्स, जो स्मॉल बीक वाले इंडिविजुअल है वो इनको फीड कर पाएंगे, जो दूसरे हैं उनका जो है उनको ये विजिबल नहीं होंगे, तो इनका यहाँ पे सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। और जो तीसरा है इसमें बहुत बड़े सीड्स हैं, तो इनमें बीक साइज और बड़ा होना चाहिए इस एरिया में रहने के लिए। तो नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल्स को इस तरीके से सिलेक्ट करती है कि जो डिफरेंट कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, उस हैबिटेट में जिस इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा सर्वाइवलशिप रेट होता है उसको नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट करती है, और उसका नंबर पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो इस आइलैंड पे डिफरेंट हैबिटेट्स थे इनमें पॉपुलेशन डिस्पर्स हो गई, मींस यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये स्प्लिट हो गई सभी पार्ट्स में। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सिव सिलेक्शन की। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन एंड टाइप्स ऑफ सिलेक्शन. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.